डॉन सिनेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी फिल्में, जैसे कि पुरानी फिल्में हैं, विंटेज फिल्म्स हैं, उनका दोबारा से हम रीलॉन्च देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर। Trippi Traveler is a show that is, it's not like any other travel show, which is usually quite boring, is what I feel. What we have done with Trippi Traveler is that for every destination that we are going to, we are going to have celebrity guests coming along with us, do things that nobody else has done, show places to people that nobody else has done, and it's going to be more for fun fish. So yeah, Dawn Cinema I think is going to be a lot of different kind of entertainment. They're going to have a lot of international movies, international shows, and they're going all over the world. Again, I'd like to congratulate Mr. Mahmood Ali and Mr. Mohammad Fasil for coming up with such an amazing idea. Thank you very much. You recently shot Trippi Traveler and of course we will see a sneak peek of it. Tell us, the kind of places that you want to explore during, which is of course going to be very unique and one of its kind. Tell us a little bit more about Trippi Traveler. Okay, so yeah, like I said earlier, Trippi Traveler is going to be a very wild and wacky show. We are doing a lot of stuff that we want to go to where no one else has gone before. We are going to go to places that a lot of people don't know about. Like the first few episodes we've shot in a place called Malana. It's close to Kasol. It's a place where no cars, no motoring, there's no motoring road for it. So we had to trek for 2 hours, and I had taken actor Shweta Kanduri with me for that. So the show is going to be very different from most of the travel shows because, like I said, they're going to show a lot of places and things which people don't know about. And hopefully after watching the show, I think people are going to go to those destinations. So we've just started with India right now. Slowly and steadily we're going to move on to the rest of the country. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज अ पोस्टर देख रहा हूँ, आपकी बैग, आपकी टी शर्ट, सब कुछ थोड़ा हॉरर काइंड ऑफ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर, कुछ मिस्ट्री इसके पीछे? See, as a filmmaker, I've always been drawn to thrillers and horrors. मुझे यार skeleton बहुत अच्छा लगता है. Even my T-shirt is a skeleton. I just find it very wacky, so this is the way I dress. It's not like I've done this just for the show today or something. I usually dress up. सर डॉन सिनेमा के अंतर्गत कोई हॉरर फिल्म जल्दी आ सकती है, इस तरीके से देखने मिल सकती है? बहुत जल्दी, yes, we are working on a new web series now. Hopefully we're going to be shooting in the Maldives. It is a horror web series, and soon we will make an announcement. थैंक यू सो मच. Very long time, and we know his love and passion for traveling, and now finally he's getting something what he loves and all of us love, so we just want to wish him all the best. Trippi Travelers, जब नाम सुन करी, this has been our group name for years and years to be connected between us friends because we've been traveling. हमने बहुत travel किया है around the world, और एक traveling का जो experience अजीज़ के साथ तो मैंने as a personal friend किया और हम सब ने किया है, बहुत amazing रहा है. and I'm glad कि Dawn Cinema के through experience लोगों तक पहुँचाएगा, and I'm sure you all are going to love it क्योंकि हर एक ट्रिप में और हर एक ट्रैवलिंग की एक अपनी कहानी होती है और वो इस शो के थ्रू आप सब तक पहुंचेगी. मैम मैं आपसे जानना चाहूँ, थोड़ी देर पहले सर ने एक अनाउंस किया था कि हॉरर वेब शो करके जल्दी लेकर आओ, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? वो आपको अजीज़ को ही पूछना पड़ेगा. मैं हमेशा उसको पूछती तो मुझे लेता क्यों नहीं. ऑलवेज ही हैज़ अ एक्सक्यूज. आई थिंक यू शुड आस्क हिम. मुझे लगता है कि एज एन ट्रैवलर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को भी उस जगह पे देखने का, क्योंकि मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ, बीन टू एवरेस्ट ऑल्सो, और अभी आने वाले कुछ फ्यूचर के लिए उसके प्लान्स हैं मेरे साथ भी. तो आई एम हैप्पी विद दैट कि इसने कुछ ऐसा शुरू किया है, और आई नो कि उसका ट्रैवलिंग को लेके
शूट को लेके जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल है। और अब मैं देखना चाहता हूँ उसने जो शूट किया है, जिस तरीके से उसने वो जो शो पूरा तैयार किया है ट्रैवलिंग पे, वो कैसा होगा। हम श्योर अच्छा ही होगा, हमें देख के बहुत अच्छा लगेगा। Thank you. Thank All you. the best. Bye-bye. सर गुड टू सी यू, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फिर से शुरुआत हो रही, जैसे शाहरुख सर की डॉन 1 क्या फिर से डॉन 2 आने वाली है, जो रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आप दोनों जानते हो इस बार नई तैयारी के साथ क्या कुछ नया होगा, क्या नए विजुअल्स होंगे, क्या कुछ नया देखने मिलेगा? जब मैंने 2019 में डॉन सिनेमा शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेस मिलेंगी जितना लॉकडाउन के वजह से वी आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 5 इन द वर्ल्ड और बहुत बड़ी सक्सेस मिली। तो हमने, क्योंकि हम बिना तैयारी के आए थे, सिर्फ ऑन एंड्रॉयड पे थे, तो इस टाइम हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। iOS पे है, हम लोग जियो के साथ में हमारा टाइप हुआ है, अमेज़ॉन प्राइम के साथ में टाइप हुआ है और 18 डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड, चाइना, ताइवान, रशिया, ईरान, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऐसे कई इंटरनेशनल OTT के साथ में हम लोग टाइप करके इस बार तैयारी के साथ में आए। उस बार हम लोग आए थे KG के बच्चे की तरह आए थे कि हमें पता नहीं था कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद में कहाँ जाएंगे, क्या डिग्री लेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम लोग पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में तैयारी के साथ में कि वी व्हाट वी वांट। वैसे आपसे जानना चाहेंगे डॉन सिनेमास का जो शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड यू ऑल कोलैबोरेट टुगेदर? Basically, I'm also in film production distribution from 25 years. Then Mahmood was doing a very good job, and now eventually everything is OTT. So that's why I've joined hands with him, and we are going to be to the part to the other OTT channels. सर जिस तरीके से आपने बाद में मेंशन किया कोविड को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोविड के बाद हिंदी सिनेमा कितना बदल गया? कम्प्लीटली एक डिफरेंस आया, क्योंकि मैं एज एन प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर काम किया हूँ पिछले 20-22 साल से। तो मुझे लगता था कि कोविड के बाद में थिएटर शुरू नहीं होंगे, थिएटर का टाइम नहीं आएगा, लेकिन थिएटर एक चैलेंज बन गया है OTT वालों के साथ में। आज अगर आपको फिल्म बनानी है तो प्रोड्यूसर को पहले दिन से फैसला करना पड़ता है व्हाट दे वांट, OTT और थिएटर, क्योंकि बिग डिफरेंसेस आ गए हैं। एक OTT की ऑडियंस अपनी आ गई है जिसे बहुत अच्छा नया कंटेंट देखने मिल रहा है, और थिएटर वालों की ऑडियंस के लिए जो रेगुलर फिल्में हैं वो बनना बंद हो जाएंगी अभी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बात करूँ सर नाम के डॉन की, मैं आप दोनों जानते हैं कहाँ से डॉन नाम की खोजी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल, नामुमकिन है, और आपने पकड़ लिया और आज बैनर भी ला दिया। एक्चुअली डॉन का मतलब है D फॉर डिजिटल, O फॉर ऑनलाइन, N फॉर नेटवर्क। विदाउट दिस 3 वर्ड OTT इज़ नॉट कम्प्लीटेड। सो इट इज़ अ बिहाइंड दैट डॉन। जब मैं नाम रख रहा था मुझे कई चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि क्या रखें, लेकिन जब मुझे डॉन आया, क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि लोग भूलेंगे नहीं। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे इंसान ज़िला गाजियाबाद है, सो मेनी फिल्म्स सच बिग पार्ट ऑफ OTT का जब आप विजन आप देखते हैं कैसे अलग देखते हैं, ऑल्सो देयर आर प्लान्स ऑफ म्यूजिक जर्नी ऑल्सो, प्लीज टेल अस अबाउट इट। Because this OTT platform, we have now more than 5,000 hours of content we have at present, and we'll be acquiring, we'll be making in-house as well, and eventually we have another project coming up, Dawn Music Cafe, with the app. That's something unique. एक्चुअली डॉन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, डॉन म्यूज़िक कैफ़े, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे AI इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एनी पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। जो AI जिस तरीके से आ रहा है, AI के आने से जितने बड़े बिजनेसमैन थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो नंबर 10, नंबर 15, जितने आप टॉप 10 के बिजनेसमैन अगर आज के वक्त में देखेंगे, इंडिया में बिलियनर्स जो पहले थे वो सिर्फ 12 या 15 थे, अब 54 हो गए हैं। वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ AI। तो AI के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, चैलेंजेस आ रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, सिंगरों के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं म्यूज़िक का, जिसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एनी न्यू सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, और जो इवेंट्स होते हैं वो लाइव इवेंट, आप चाहे रशिया का इवेंट देखना चाहे, आप चाहे म्यूज़िक सुनना चाहे, किसी भी FM का सुनना चाहे, इमीडिएटली आपको एक सिंगल टैप पे मिल जाएगा। टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, और क्या बच्चों का भी कुछ है, बच्चों के लिए भी? डेफिनेटली जब मैं आई वॉज द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ OTT, जब मेरे साथ में कपिल देव पार्टनर थे, तो मैंने उस वक्त में कहा था कि मैं न्यूडिटी नहीं लेकर आऊँगा, मेरा OTT फैमिली OTT होगा, बच्चे देखेंगे, जवान देखेंगे, बूढ़े देखेंगे। तो मैं आज भी उस पर स्टिक हूँ। मैंने ऐसे कोई कंटेंट ना बना रहा हूँ, ना बनाना चाहता हूँ जिसके वजह से मेरे बच्चे वाली ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस हाथ से जाए। और
पूरी दुनिया हंसती थी मुझ पर कि फैमिली ऑडियंस है ही नहीं, OTT की ऑडियंस। जब सीक्रेट गेम्स आया था, सीक्रेट वो आया था, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म पे नई चीज़ आए थे, गाली गलौज के साथ में या न्यूडिटी के साथ में, एक चैलेंज बन गया था OTT के लिए। लेकिन डॉन ने प्रूव करके बताया कि नहीं, हम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने हिसाब से कंटेंट बनाएंगे और लोग उसको देखेंगे। क्योंकि ऑडियंस आपसे कभी नहीं कहती है कि मुझे ये देखना है। ऑडियंस बोलती है ये अच्छा कंटेंट है, चाहे फैमिली वाला चाहे न्यूडिटी वाला, वो कहती मुझे ये देखना, ये नहीं देखना। सर जिस तरीके से आपने ऐप की बात की, आप मेंशन किया, मैं जाना चाहूँगा जो ऐप रहेगा वो पेड रहेगा, अनपेड रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, फ्रॉम डे वन जब हम लोग डॉन ओरिजिनल लेकर आए थे, पहली बार लेकर आए थे, तो पहले डे वन से हम लोगों ने पेड रखा था। दिस टाइम 3 मंथ के लिए हमने लेकर आए, क्योंकि हमारे टाइप जिन लोगों के साथ हुए हैं, जियो के साथ में या और इसके अमेजोन के साथ में, तो दे सेट के 3 मंथ वी आर गोइंग टू फ्री, आफ्टर 3 मंथ डेफिनेटली वी विल चार्ज। सर लास्ट में आपसे बस जानना चाहूँगा, क्या लगता है डॉन सिनेमा में रियलिटी शोज की तरफ भी ध्यान जाएगा? Yes, वी आर बिग बॉस का फिलहाल ट्रेंडिंग पे कर रहा है, काफ़ी मिलियंस फॉलोअर्स उनके बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डॉन सिनेमा भी कोई रियलिटी शो की तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स, अगर आप डॉन ओरिजिनल की जब हम 2019 में आए थे, तो उसका जो उस रथ को खींचने वाला घोड़ा जो था वो टॉकर हाउस था। और टॉकर हाउस हमने बिग बॉस के लिए चैलेंज लेकर आए थे। जितनी चीज़ें हमने उस वक्त में टॉकर हाउस के साथ में लेकर आ रहे थे, बिग बॉस हमको फॉलो कर रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था टॉकर हाउस इज़ अ चैलेंज फॉर बिग बॉस। तो वो एक हमने हमारा टॉकर हाउस वो था जो इन्फ्लुएंसर्स को, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को हम लेकर आ रहे थे एक रियलिटी शो में, और इतना ज़्यादा वायरल हुआ था वो कि everyone wants to work with me। इवन मुनव्वर फारूकी का मुझे मैसेज आया था, कैन आई। तो डेफिनेटली ये ऐसा टॉकर हाउस रियलिटी शो है जो मुझे लगता है कि इट विल वर्क। बाकी से क्या अलग होगा, और क्या कमर्शियली कमाएबल होगा बाकी प्लेटफॉर्म से? बिकॉज काफ़ी कम्पिटिटिव है प्लेटफॉर्म OTT के और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। जी, तो आपका क्या नाम? देखिए, मैं जहाँ तक जितना बिजनेस मैं समझता हूँ, मेरा अपना बैकग्राउंड रहा है क्रिएटिव से। एज एन राइटर आई स्टार्टेड माय करियर। कादर खान के साथ में मैंने 69 फिल्में लिखी। उसके बाद में महाभारत 1 जो ओरिजिनल महाभारत थी उसमें असिस्टेंट था मैं, डॉक्टर आहिम असम रज़ा का। तो मुझे समझ में आता है कि एंड ऑफ द डे आपका कंटेंट आपका हीरो है। अगर आपको कंटेंट को सही जगह में, तो लोग, आपकी ऑडियंस आपको 100 रुपये भी महीना देंगे, 300 भी देंगे और 1000 भी देंगे, अगर आपके पास कंटेंट है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप 29 रुपीज़, 15 रुपीज़, 1 रुपीज़ कुछ भी कर लो, वो ऑडियंस नहीं आएंगे आपके पास। जी, ट्रिपी एक पागलपन वाला शो है, एक ट्रैवल शो है, जिसमें मुझे अजीज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और जब हमारे पास में आए वो अजीज़ ने ये आइडिया लेकर ट्रिपी ट्रैवल, तो हमने इमीडिएटली ग्रैब किया, विदाउट टाइम लिए 1 हफ्ते में हमने पूरी शूटिंग प्लान की और हमने लेह लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, हमने हर जगह को एक्सप्लोर किया और ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया है जो किसी भी ट्रैवल शो में नहीं देखे होंगे, चैलेंज के साथ कहते हैं। और एक अलग पागलपन, एक अलग, आप हरे रामा हरे कृष्णा में जो आपने जीनत अमान का एक रूप देखा होगा, इस शो में हमारे जितने भी सेलिब्रिटी रहेंगे उस तरीके का रूप देखेंगे आप। चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आज अनवील हो रहा है प्लेटफॉर्म। Please watch Dawn Cinema. You'll get everything there. Animation, movies, travel shows, reality shows, everything. Please watch Dawn Cinema. Keep watching Dawn Cinema. Thank you, sir. Thank you. डॉन सिनेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी फिल्में, जैसे कि पुरानी फिल्में हैं, विंटेज फिल्म्स है, उनका दोबारा से हम रीलॉन्च देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर। जो फिल्म्स हम मतलब बहुत पहले देखकर भूल चुके हैं, तो उसको हम दोबारा से डॉन सिनेमा पे देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें कुछ ऐसी फिल्म्स है जो हमने नहीं एक्सप्लोर की, वो हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी नए लॉन्च में नए सिनेमा जो शुरू होगा यहाँ से, आपका क्या कुछ नया प्रोजेक्ट है इसमें, कोई नया कैरेक्टर आप दिखाते हुए? हाँ जी, मैं सर के साथ 1-2 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो उसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं रिवील कर सकती, तो वो सही टाइम आने पे सबको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ आज एक विजुअल्स हो जाएगा, रेडी रोल। मैम गुड टू सी यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर डॉन सिनेमा फिर से हम सभी के बीच में लेकर आ रहा है, आप क्या उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहले तो वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस कि वी आर लॉन्चिंग डॉन सिनेमा ऑन OTT प्लेटफॉर्म। एंड माय थिंग इज़ कि हम जितने ये प्लेटफॉर्म्स लाते रहे उतना हम विल बी एबल टू ब्रिंग इन सो मच मोर कंटेंट एज टेक्नीशियंस, एज एक्टर्स,
as per, a part of the fraternity. So yes, it's exciting and a big congratulations. अगर बात करूँ आपकी, क्या आप भी डॉन सिनेमा से जुड़ रहे हैं? Hopefully, fingers crossed. There is so much content that's getting made, and Dawn Cinema लेता है, कोई और cinema लेता है. OTT platforms are open to receiving much more than we had in the past. So I'm sure that someday we will be connecting with Dawn Cinema and doing something. डॉन सिनेमा रियलिटी शो के भी अनाउंसमेंट की जल्दी एक नया रियलिटी शो भी लेकर आएंगे, क्या आप उसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे? वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये सब रियलिटी शोज ना, वो असलियत बाहर आ जाती है लोगों की. आई डोंट वांट माय असलियत टू कम आउट, बट जस्ट किडिंग, आई डोंट माइंड. आई विल एक्चुअली ट्राई माय बेस्ट टू गेट इट. थैंक यू. और मैं महमूद भाई को और मोहम्मद भाई को दोनों को बहुत बधाई देता हूं. डॉन सिनेमा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है, क्योंकि मैं तो रेलवे वाले का बेटा हूं, तो प्लेटफॉर्म की इज्जत करना जानता हूं. प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत एक रिस्पेक्टेड जगह है. तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको पता है, आप सबका आशीर्वाद जब रहता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाता हूं. तो भक्त जनों, डॉन सिनेमा की भावनाओं को समझो. जो हमारा नाम है रतन नूरा, और डॉन सिनेमा जो देखेगा उसका जीवन हो जाएगा काशी और मथुरा, और अगर जो नहीं देखेगा वो रहेगा अधूरा. सर मैं आपसे क्या डॉन सिनेमा पर आपकी गदर भी आ सकती है, जिसका आप वेट करें काफी टाइम से, हम सबको सुनाते रहते हैं आपकी कहानी. गदर थी का डायलॉग सुना दो क्या वो? जी वही चाहता था. 2 डायलॉग जोड़ के. किस आज़ादी की बात करते हैं आप लोग? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा. और यस, मैंने भी इनको अपनी गाली गलौज के लिए भी बोला है, हमारे महमूद भाई को, क्योंकि मैंने ये फिल्म शेयरिंग में हर जगह दे रखी है. तो महमूद साहब भी कह रहे थे कि इसको कर देते हैं, तो अच्छी बात है. तो बाकी फिल्मों का डॉन, सिनेमा का डॉन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और OTT का डॉन, डॉन सिनेमा. ऑल द बेस्ट. Well, it's a wonderful thing कि जितने प्लेटफॉर्म आए एक्टर्स के लिए और सारे कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है. So I wish them all the best, and I hope this platform also and this channel rocks. Dawn sounds only like एक I don't know नॉर्थ के हिसाब से है, but it sounds really really good and cool. So wishing them all the best. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्टर्स के OTT बहुत ही शानदार रहा है ये साल और आने वाले साल के लिए. आप OTT को किस तरीके से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि आप सबको नज़र आ ही रहा होगा कि जब से OTT आया है काफ़ी कलाकारों को काम मिला है. बिकॉज टेलीविज़न में क्या होता था कि एक टिपिकल कास्ट होती है लुक के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से. OTT में यू हैव सो मेनी एक्टर्स, एंड आज एक हर आम आदमी एक्टिंग में आ गया है, बिकॉज दे वांट लुक, दे वांट कैरेक्टर्स. तो दिस इज वर्किंग. आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग नाउ फॉर एवरीबडी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. सर यहाँ पे एक बार सर यहाँ पे थैंक यू सर एक मिनट Amazing, Dawn. We wish them all the best, and especially me and Neeraj sir has come to promote them and support them. All the very best for Dawn Cinema. It's a great beginning, and I wish all the luck. Thank you. We wish you guys all the best. Lot of love. डॉन सिनेमा को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, और बहुत अच्छे एक OTT इनका है. So best wishes for Dawn Cinema. Thank you. डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो. ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा, नॉट ओनली टू आर्टिस्ट बट टू टेक्नीशियन, टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट. सो आई थिंक जितने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. इंडस्ट्री का डॉन, come on, right now we're just launching Dawn Cinema, so let's call Dawn Cinema. Thank you. Intrigued by the name Dawn, and इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ ताकि मैं भी लगूँ कि मैं अंडर कवर कुछ हूँ, ताकि मैं डॉन सिनेमा में देखूँ डॉन कौन है, फिर तो पकड़ के. Thank you so much, Paru.
एक और प्लेटफॉर्म आ रहा है और भी आएंगे। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए ऑल आर वेलकम एंड आई विश डॉन प्लेटफॉर्म द वेरी बेस्ट एंड खासकर अजीज़ ट्रिपी जो उसका शो लॉन्च हो रहा है, आई विश हिम द वेरी बेस्ट। I would just like to congratulate Dawn Cinema and अच्छी बात है एक और OTT आ रहा है। आई होप इसके साथ और अच्छा काम भी आए। हाँ, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा काम होगा। So we actors are happy कि yes, please keep coming. Okay, see you guys. What wishes would you like to give for Dawn Cinemas? They're entering the market at just the right time. India now has grown exponentially. I think we have almost about 800 million plus actively engaged viewers on OTT, and I think total number of OTTs are almost about 60 plus. So they are entering the market at a very mature, market, and content is going to be playing a very big differentiator. So I wish, and I'm assuming and I'm hopeful that Dawn Cinema will bring a lot of disruptive and disruptively engaging content. I wish them all the best. I'm aware of a couple of very interesting shows that they are launching their property with. One of them is a travel based show by Aziz, my dear friend Aziz Z, which has been packaged very differently, and I'm assuming a lot of other content is going to be equally exciting. So I wish Dawn Cinema a wonderful journey in this incredibly exciting OTT space in the country. Thanks. सर डॉन सिनेमा अब फिर से रिलॉन्च हो रहा है नए कंटेंट के साथ और नई सीरीज देखने नए शोज आएंगे। क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबसे पहले डॉन सिनेमा को? I think it's amazing. ऐसे competitive time में if Dawn has come in the market, I'm sure वो कुछ ऐसा अलग करेंगे या ऐसा कुछ धमाका करेंगे that it gives platforms a nice healthy competition and also a lot of creators, चाहे वो producers हों चाहे content creators हों, उनके लिए एक मौका मिलेगा एक और platform पे आने का. So I'm really happy that something like this is happening. जी आप देख रहे हैं काफी लंबे टाइम से रेट्रो लुक को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कोई राज आप कुछ बताना चाहेंगे? बड़ी अजीब सी बात आप ये कह रहे हो क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से एक पुरानी पिक्चर थी स्टार कुमार गौरव की, मैं उसी को सुन रहा हूँ, पता नहीं क्या एक फुल रेट्रो मूड में हूँ. सो इट्स बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है एंड आई एंजॉय. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द स्टाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ द फील, आई थिंक रेट्रो लुक वापस आ रहा है. द बेल बॉटम्स, द पोल्का डॉट्स, you got it, yeah, and just the whole feel, the whole vibe, the whole Dawn vibe. Thank you so much. Thank you, man. Take care, guys.